Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are fine and doing well. So students, I am Asaf Jamal and today we are going to apply in another Italian university, and this time is for University of Trieste. So University of Trieste is also very good ranked University of Italy, and it stands at the 20th position in Italy and at the 500th position in the QS World Ranking. And if we talk about the scholarships and other benefit that University of Trieste offers, so yes, University of Trieste is also offering merit-based scholarship, also need-based scholarship, and which is called region-based scholarship. So if you are international students and looking for the best options in Europe and Italy, so basically University of Trieste is for you people. Before starting the video, if you are new to my channel, so press the subscribe button so you never miss another update. So let's begin our video. So student, this is official portal of University of Trieste. So here we can check out the requirements, language requirements and proficiency requirements, and merit based requirements. Each and everything will be published on this website, and we will check everything on this website. So this is not application website. Application website is another website which is called the Dream Apply website. So at the Dream Apply website we can apply for the application. So here we check out the requirements. So in University of Trieste we find both bachelor's and master degree programs, which is both are in English taught programs. So in bachelor's we have 3 years of degree, and in masters we have 2 years of degree. We have also single cycle master degree, which is based on a 5 or 6 year degree programs, और इंट्री क्वालिफिकेशन अपर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा चाहिए होता है इसमें, और वाइड क्वालिफिकेशन में फर्स्ट साइकिल डिग्री चाहिए होती है हमारे पास. और इन मास्टर डिग्री वी रिक्वायर एंट्री क्वालिफिकेशन फर्स्ट साइकिल डिग्री मीन टू से योर बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, एंड वाइड क्वालिफिकेशन सेकंड साइकिल डिग्री मीन योर सनद वगैरह जिसको हम कहते हैं. सारी चीज़ें हमें इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए होगी बैचलर्स में एंड देन फॉर मास्टर्स में. सो इसका एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, इसका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ड्रीम अप्लाई का, एज यू ऑल नो. सो ड्रीम अप्लाई पोर्टल पे हम चलेंगे और वहाँ पे जाके इसको अप्लाई एप्लीकेशन इसकी प्रोसीड करेंगे. So student, basically this is the application portal for the University of Trieste. Here we can apply for the application for the year 26 and 27. So first we check out the programs available in University of Trieste. So click on the find programs and choose the filter 26-27, then English language, and first we check out the bachelor's degree, find programs. So for bachelor's we have 3 programs: business administrations and earth sciences, and then international economics and financial markets. And then we check out the master degree programs. In masters we have multiple options: computer engineering, data science, economy, engineering, European policies, geophysics, mathematics, neurosciences, and mean to say we have multiple options in the master degree. So as usual I will focus on the bachelor degree programs. So we have 3 options in the bachelor. So let's suppose we can apply in the business administration and management. First we check out the requirement, click on the more information, and tuition fees is 600 euro and application fees is 40 euro one time, and it approximately 13,150 rupees in Pakistani and US currency 46. So language requirement English and Italian both हैं. अदर रिक्वायरमेंट में नॉन EU एप्लीकेंट्स के लिए टॉल की रिक्वायर है टेस्ट इसमें, ठीक है. सो firstly fill out the requirement of TOEFL test and book the test TOEFL at the Chizia portal. If you don't know how to book the test from the Chizia portal, so watch to my video I have added to my channel how to book the TOEFL test for the year 26 and 27. So let's begin our application by clicking on the apply now. तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, एक बात मैं आपको इसमें ये बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि टॉल की टेस्ट के साथ ही आपने प्रोग्राम्स को प्रोसीड करना है. मे बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो हमारे पास 3 प्रोग्राम्स उनमें टॉल की रिक्वायरमेंट ना हो और किसी टॉल की भी रिक्वायरमेंट ना हो, तो फर्स्टली चेक आउट द रिक्वायरमेंट और उसके बाद आप अप्लाई किया करें, ठीक है. मैं आपको अभी इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट से बता रहा हूँ कि टॉल की इसमें रिक्वायर है, ठीक है. और ट्रिस्टी यूनिवर्सिटी के मोस्टली प्रोग्राम्स में टॉल का टेस्ट रिक्वायर ही होता है. सो आप पहले टॉल टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग करें चीज़ें पोर्टल पर जाके, और उसके बाद आप मूव ऑन किया करें नेक्स्ट उसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ. तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को फिल आउट कर लेते हैं. तो अपने जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर लिखना है. उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपका यहाँ पे लाजमी तौर पे आएगा, ठीक है. जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है. जेंडर स्पेसिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है. और पासपोर्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आईडी कार्ड नंबर भी दोनों लिख सकते हैं. सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने चूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है. प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आप अपनी सिटी का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, XYZ, ठीक है. एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, वेयर यू आर, यू कैन सेलेक्ट योर कंट्री, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोफाइल सेक्शन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्टैक्ट. सो फिल आउट योर कॉन्टैक्ट स्ट्रीट, 3 street, 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 3 street,
and at the last you have to select your country. So after completing the contact portion, move on to the education, which is the most important part of our application. So firstly, fill up your education details. So we are applying for the bachelor's degree, so we have to select the secondary education and expected graduation, जिस ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी वो आपने चूज आउट करना है, ठीक है. देन ऑफिशियल, जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो आपने उसका नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ठीक है. XYZ जिस भी कॉलेज से आपने किया, ठीक है. कंट्री कौन सी आएगी यहाँ पे, पाकिस्तान, ठीक है. प्रोग्राम नेम, so if you have done FSc pre-engineering, so do specify pre-engineering, and if you have done your ICS, then do specify ICS, and also pre-medical. स्टडी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपना कंप्लीट किया है, इंग्लिश, ठीक है. अवार्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री, हाँ ये अब क्या चीज़ है, अवार्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री. आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना होता कि आपके ग्रेड्स क्या हैं, ठीक है. आपको कौन सी डिग्री, उसके इस डिग्री का नेम क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, विच इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है. आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप करना है, ना कि अपने डिग्री का नेम यहाँ पे ऐड करना है, वो सॉरी स्कोर ऐड करना है, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरमीडिएट, आपने यहाँ पे बैचलर्स के लिए क्योंकि आप अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि आप इंटरमीडिएट के साथ मास्टर को भी ऐड करें. सो इंसर्ट न्यू ब्लॉक हियर करें. तो यहाँ पे अपना लेवल ऑफ एजुकेशन, अगेन सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, जिस भी ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मैट्रिक की, ठीक है, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. आफ्टर डैट जिस स्कूल से आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है. जो भी आपके स्कूल का नेम है आपने वो यहाँ पे स्पेसिफाई लाजमी करना है, ठीक है. सो आफ्टर डैट कंट्री पाकिस्तान, प्रोग्राम नेम मैट्रिक, ठीक है. एंड आफ्टर डैट स्टडी लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश, एंड अवार्डेड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे भी आपने मैट्रिक ही टाइप करना है. सो आफ्टर फिलिंग आउट द एजुकेशंस वी हैव टू मूव ऑन द लैंग्वेज टॉपिक. सो नेटिव लैंग्वेज उर्दू. सो फॉरेन लैंग्वेज में आपको जो भी आती है, इंग्लिश आती है या जो भी इटालियन लैंग्वेज अगर आपको आती है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू हैव टू चूज द इंग्लिश लैंग्वेज. सो यहाँ पे अपना आप प्रूफ दें, कौन सा टेस्ट आपने दिया, IELTS दिया, टोफल दिया. सो चूज जो टेस्ट विच यू हैव टेकन, प्रोफिशेंसी में आप आ जाएं, और B2 जो भी आपका है, यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आपका है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है. स्कोर आपका जो भी है उसमें वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है. स्टडी एक्सपीरियंस, हाँ यहाँ पे अब आपने स्टडीज़ का एक्सपीरियंस ये लिखना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने बताना है. अगर आप देखें आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपको 12 साल हो गए इंग्लिश में पढ़ते, यहाँ पे 12 आपने लिखना है, ठीक है. ये नहीं लिखना कि आपको IELTS की कितनी देर होगी, ये बिल्कुल भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना आपने, ठीक है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेजिडेंसीज. रेजिडेंसीज में आपने कुछ भी नहीं फिल आउट करना. अगर आपने पहले से आपके पास किसी कंट्री का वीज़ा है या आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने कहीं पर ट्रैवल किया तो आपने लिखना है कि आपके पास किसी और कंट्री का भी वीज़ा है, आपके पास उस कंट्री की नेशनलिटी भी है, तो आपने वो स्पेसिफाई करना है रेजिडेंसी में. अदरवाइज सिर्फ आपने इसको छोड़ देना. एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ डॉक्यूमेंट्स. सो अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, वो विल अपलोड द डॉक्यूमेंट एट द लास्ट, ठीक है. अदर्स में आ जाएंगे हम. यहाँ पे आपने स्पेशल नीड्स में अगर आपको है कोई, मीन टू से इफ़ यू आर नॉर्मल पीपल एंड अदर स्पेशल एक्टिविटीज़ यू हैव डन टू योर सेल्फ, तो आपने वो यहाँ पे चूज़ कर देना है अदर्स में, ठीक है. अदरवाइज नॉन पे. और हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड इन द प्रोग्राम फॉर आवर यूनिवर्सिटी एंड रिसीव्ड पॉजिटिव असेसमेंट. हाँ अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया तो आप बताएं उनको कि मैंने पिछले साल अप्लाई किया था और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन द नो. एंड चेकलिस्ट में आ जाएंगे हम. अब यहाँ पे आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मीन टू से IELTS आपने अपना यहाँ पे अपलोड करना है. IELTS है या जो भी आपके पास टेस्ट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, मीन टू से आपने हाई स्कूल की अपनी डिग्री एंड विच इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट डिग्री वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है. लॉन्ग विद डेट आपने उसके साथ मर्ज करके मैट्रिक की डिग्री भी अपलोड करनी है. ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. अगर तो आपने ट्रांसलेशन करवाई हुई इटालियन लैंग्वेज में तो आप यहाँ पे अपलोड करें. अदरवाइज ये आपने करना है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन द एक्सेप्ट लैंग्वेज, मीन टू से इंग्लिश भी एक्सेप्ट है वहाँ पे, आपने इसको कर देना, हो जाएगा. पासपोर्ट ID कार्ड आपने यहाँ पे अपलोड करना है. नेशनल इंट्रेंस एग्जाम, अगर तो आपने कोई इंट्रेंस एग्जाम दिया है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नॉट नेशनल इंट्रेंस एग्जाम इन माय कंट्री, इसको चूज करेंगे ना आप तो आपकी एप्लीकेशन फिल आउट हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट आपने रेजिडेंस परमिट. सो अभी तो आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, वो तो आपको आफ्टर द जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे फिर मिलेगा आपको रेजिडेंस परमिट, तो आपने वो तब अपलोड करना है, तो इसका इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है. एंड ये तो पहले से सिलेक्ट है कि आप पाकिस्तान से और आपने वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, ठीक है. अपने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने यहाँ पे अपलोड करने हैं. मीन टू से आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है. एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की डिग्री है, ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपने रिकमेंडेशन लेटर्स भी हैं तो आपने वो अटैच करके यहाँ पे उनको अपलोड कर देना. स्टेप बाय स्टेप कर दें या फिर एक ही बार में कर दें तो कोई मसले वाली बात नहीं. आप यहाँ पे अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिग्री को ही अपलोड करना है,
और अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो आप अपने तभी बैचलर्स की डिग्री अलॉन्ग विद डैट अपनी हर चीज़ आपने यहाँ पे अटैच करनी लाजमी तौर पे, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो टोटली फिल आउट होकर कंप्लीट हो जाती है। हाँ, मास्टर्स में थोड़ा सा सीन चेंज होता है, वो यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट का भी पूछते हैं, 2-3 चीज़ें और होती हैं, एक्सपीरियंस का पूछते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। मेरा फोकस होता है ज़्यादा बैचलर डिग्री पे, क्योंकि बैचलर्स के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता इतना, ठीक है, मास्टर्स वालों को पता होता है ज़्यादा। तो मेरा फोकस होता है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो मास्टर्स का प्रोसीजर तकरीबन सेम ही है, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, सेम यही चीज़ें होती हैं, यही आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। सो आफ्टर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन, यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। देन मूव ऑन टू द फाइनेंसेस, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें फाइनेंसेस में मूव करेंगे, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ये देखें ये आ गई है, 40 यूरोज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आपने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे नहीं होगी ये, ठीक है। इसका एक तरीका होता है पे करने का, मैंने अपनी वीडियो में बताया, आप जाके दे सकते हैं। यहाँ से पहले आपने प्रिंट करना है इसको, इस चीज़ को, ठीक है। अब ये आपके पास प्रिंट होके आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। हमने जैसे ही इसको सेव करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब आपने इसको पे करना है, तो इसको पे करने का तरीका यहाँ, अगर आप यहाँ से होता है आपसे तो आप कर लें यहाँ से, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। इन केस आपसे यहाँ से एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन फ़ीस प्रोसीड नहीं होती, देन आपने पागोपा के पोर्टल पे चले जाना है, ठीक है। उसके आगे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने नोटिस को कैसे पे करना है। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिस का रिसिप्ट आती है उसको कहते हैं हाउ टू पे अ नोटिस। सो नोटिस आपने कैसे पे करना है, मैंने अपने चैनल पर डिटेल वीडियोज़ भी बनाई हुई है, आप जाके देखें, वहाँ से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को फिल आउट करें, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तो आपका ये वाला सेगमेंट जो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे इस जगह पे आपकी अभी तो ड्राफ्ट में है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ीस को पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को पहुंच जाएगी और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी कि आपकी एप्लीकेशन जो वो एक्सेप्ट हो जाए और आपको एक ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिस्टी से रिसीव हो जाए। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट विद मी. Do contact with me at Instagram, at email, at WhatsApp, and any social media platform you can use. And do comment me if you have any query about the University of Tricity. So I will definitely help you out. So meet you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें.